یہ واقعہ ایک نہایت معزز گھرانے کی ایک خاتون کے ساتھ پیش آیا، تو آئیے یہ واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ میری زندگی کا ایک نہایت ہی خوفناک واقعہ ہے۔ دل چاہا کہ یہ واقعہ اب آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میرا تعلق اسلام آباد کے قریب ایک دیہات سے ہے۔ میرے میاں کا اناج کا وسیع کاروبار ہے۔ ہمارے 2 بچے ہیں جو اب جوان ہو چکے ہیں، ایک بیٹی جس کی شادی کر دی گئی ہے، جبکہ بیٹے کی ابھی شادی کرنی ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ہمارے بچے چھوٹے تھے۔ ہم سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی مسافت پر مری کا خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے۔ مری کے بارے میں اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ مری ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ سرسبز و شاداب پہاڑ، اور موسم سرما میں خوب برف باری ہوتی ہے، اور گرمی کے شدید موسم میں بھی وہاں پر موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اور سردیوں میں بے تحاشا برف پڑتی ہے۔ سردیوں میں تو نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ سڑکوں پر کئی فٹ برف کی تہ جم جاتی ہے، اور پھر کرینوں سے برف کو اتارنے کا کام کیا جاتا ہے، اور سخت گرمی کے موسم میں گرمی کے ستائے ہوئے لوگ نچلے علاقوں سے مری کا رخ کرتے ہیں۔ یہ شہر دراصل انگریزوں کا بسایا ہوا ہے۔ جس وقت ہندوستان پر انگریزوں کا راج تھا، تو خوبصورت اور صحت افزا ٹھنڈا مقام ہونے کی وجہ سے انگریز اسے اپنے لیے استعمال کرتے تھے۔ ملکہ کوثار مری پاکستان کے شمال میں ایک مشہور اور خوبصورت تفریحی مقام ہے۔ مری کا سفر سرسبز پہاڑوں، گھنے جنگلات اور فضا میں رقص کرتے بادلوں کے حسین نظاروں سے بھرپور ہے۔ اس 7000 فٹ بلند سیاحتی مقام کی بنیاد برطانوی دور حکومت میں رکھی گئی۔ آج کل مری سطح سمندر سے تقریباً 8000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ مری کی بنیاد 1851 میں رکھی گئی، اور یہ برطانوی حکومت کا گرمائی صدر مقام بھی رہا۔ شہر میں بہت سے چرچ بنائے گئے ہیں۔ شہر کے مختلف تجارتی مراکز اور کثیر تعداد میں ہوٹل ہیں۔ مری گلیات میں واقع ہے۔ مری کی بنیاد سر جیمز ایبٹ نے 1847 میں رکھی تھی۔ خیر، مری کی تاریخ تو کچھ زیادہ ہی بیان ہو گئی، تو ہمارا پروگرام بنا کہ ہم مری کی سیر کے لیے چلتے ہیں، اور 5 دن ایک ہوٹل میں قیام کریں گے۔ میرے شوہر منور نے فون پر ایک ہوٹل کی بکنگ کر لی۔ ہوٹل کا نام میں یہاں پر تبدیل کیے دیتے ہوں۔ اس ہوٹل کا نام اورینٹ ہوٹل تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ گاڑی پر سوار ہو کر صبح ناشتے کے بعد مری کی طرف روانہ ہو گئے۔ مری کے حسین نظاروں کو دیکھتے ہوئے ہم مری شہر میں پہنچ گئے۔ اورینٹ ہوٹل کے پارکنگ لاج میں ہم نے گاڑی روکی۔ ہوٹل کے مینیجر نے ہمیں خوش آمدید کہا اور ہمیں ہمارا کمرہ دکھایا۔ یہ کمرہ تھا کمرہ نمبر 103۔ کمرہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ بلڈنگ انگریز دور کی بنی ہوئی تھی، جسے شاید اس ہوٹل کے مالک نے بعد میں خرید لیا تھا۔ ہوٹل کی اندرونی بناوٹ بہت پرانی اور قدیم طرز کی تھی، مگر اسے بہت اچھا اور خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ کمرہ بھی بے حد خوبصورت تھا، جس میں قدیم مگر قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ پہلا روز ہم نے اپنی تھکاوٹ دور کرنے میں ہی گزار دیا، اور پھر اگلے 2 دن ہم نے خوب مری کے حسین نظاروں کی سیر کی۔ مری میں موسم ہمیشہ سرد رہتا ہے، انتہائی خوشگوار اور ٹھنڈا موسم۔ یہ تیسری رات کی بات ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی کمبل اوڑھے اپنے بیڈ پر بڑے آرام سے سو رہے تھے، اور دوسرے بیڈ پر بچے میٹھی نیند سو رہے تھے۔ رات کا وہ تقریباً 2-2:30 بجے کا وقت ہوگا۔ وال کلاک پر گھڑی کی ٹک ٹک کرتی ہوئی سوئیوں سے میں نے اندازہ لگایا۔ اسی وقت مجھے کسی کے باہر چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ میری نیند بہت ہی کچی ہوتی ہے۔ ذرا سی آہٹ اور کھٹکے سے میں جاگ جاتی ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی، کیونکہ اس وقت تو آس پاس کے کمروں میں بھی موجود سب لوگ میٹھی نیند سو رہے تھے۔ ظاہر ہے سب لوگ یہاں پہاڑی علاقے میں سیر کر کے تھک گئے ہوں گے، اور ہوٹل کے کسی عملے کے بھی جاگنے کا جواز نہیں تھا۔ پھر یہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی تھی؟ ایسا لگتا تھا کوئی اپنے قدم آہستہ آہستہ گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ کبھی وہ آواز دور ہو جاتی اور پھر قریب آنا شروع ہو جاتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے باہر گیلری میں کوئی آدمی ادھر سے ادھر چکر لگا رہا ہو۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ میں نے فوراً بستر سے اٹھ کر چپل پہنی اور دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ بڑے آرام سے میں نے دروازہ کھولا اور باہر جھانک کر دیکھا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بلب کی دھیمی روشنی میں پوری گیلری صاف دکھائی دے رہی تھی، اور گیلری میں کسی آدمی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اور جو ہی میں نے دروازہ کھولا، چلتے ہوئے قدموں کی آواز بھی رک گئی تھی۔ میں نے اسے اپنا وہم جانا اور دروازہ بند کر کے دوبارہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی، مگر جیسے ہی میں لیٹی
फिर वही चलने की आवाज़ आना शुरू हो गई। अब तो खौफ के मारे मेरे पसीने छूट गए। मैंने अपने खामिन की तरफ देखा जो बड़ी मस्त नींद में डूबे हुए खराटे ले रहे थे। खौफ से मेरी बुरी हालत हो रही थी। मैंने अपने खामिन का कंधा हिलाकर उन्हें उठाया। वो हड़बड़ाकर ऊँ आ करने लगे। क्या बात है भाई, सोने क्यों नहीं देती? वो देखिए, बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। मैंने सरगोशी के से अंदाज में उन्हें कहा। अरे तुम्हारा वहम है, कोई नहीं बाहर, चलो सो जाओ आराम से, उन्होंने कहा और फिर करवट बदलकर सो गए। मैंने मायूसी के आलम में धीमे बल्ब की रोशनी में निगाह सोए हुए बच्चों पर डाली। वो दोनों भी बेखबर सो रहे थे। आवाज़ अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारे कमरे के दरवाजे के बाहर आकर रुक गई हो। अब तो मेरा सांस खुश्क होने लगा था और फिर अचानक दोबारा आवाज़ आई और चलते हुए कदमों की आवाज़ दूर हो गई। सारी रात मैंने जागकर गुजार दी। सुबह उठकर मैंने अपने खामिन को बताया तो वो हंसने लगे। अरे तुम्हारा वहम होगा, ये होटल है, लोग आते जाते हैं, कोई मुसाफिर होगा ठहरा किसी कमरे में, किसी के आने जाने की आवाज़ होगी। और तुम तो जानती हो कि मरी शहर सारी रात जागता रहता है, लोगों का हजूम जो रहता है। नहीं नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। मैंने गैलरी में झांक कर भी देखा था, लेकिन बाहर कोई आदमी नहीं था, लेकिन आवाज़ फिर भी आ रही थी। मेरे खामिन ने हंसकर इस बात को टाल दिया। वो दिन हमने फिर मरी के हसीन नज़ारों में सैर सपाटे करते हुए गुजार दिया। अगले दिन हम खाना खाकर वापस बहुत देर से घर आए और जब सब सोने के लिए लेट गए तो न जाने मेरे दिल में गुजरी हुई रात का वो ख्याल अचानक से आ गया और मेरे दिमाग पर एक बार फिर खौफ सवार हो गया। मैंने अपनी तसल्ली के लिए आज होटल के एक वेटर से पूछा कि रात 2:30 बजे यहाँ पर कोई वॉक कर रहा था, तो उसने हंसकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मैडम, रात 2:30 बजे कौन चहलकदमी करता है? सर्दी में कौन बाहर निकलता है गरम गरम बिस्तर से? मैं खुद इस सवाल पर शर्मिंदा हो गई। मुझे न जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता सिरक रहा था। नींद तो नहीं आ रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि वक्त गुजारी के लिए अपना कोई पसंदीदा नावल पढ़ लूं, मगर बच्चे और मेरे खामिन सो रहे थे, इसलिए कमरे की लाइट जलाना मुश्किल काम था। मैं चुप होकर लेट गई। तकरीबन कोई 1 बजे का वक्त होगा कि अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे कमरे के दरवाजे पर किसी ने हल्के हल्के दस्तक दी हो। मेरा दिल खौफ से उछलकर हलक में आ गया। मेरे माथे पर पसीने के ठंडे ठंडे कतरे नमदार हो गए। किसी ने बड़े धीमे अंदाज में 3 बार दरवाजे पर दस्तक दी थी। खौफ से मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। थोड़े से वक्फे के बाद दोबारा दस्तक हुई। मैंने हौसला करके पूछा, कौन है? मगर कोई जवाब ना आया और एकदम फिर खामोशी छा गई। इतने में मेरे बेटे के रोने की आवाज आई। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी, जबकि बेटी की उम्र 5 बरस थी। मैंने सोचा शायद दूध के लिए रोया होगा, मगर उधर दस्तक की आवाज ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। हैरत की बात यह थी कि जब बच्चे के रोने की आवाज आई तो उसके बाद से दस्तक की आवाज नहीं आई। मैंने उठकर बच्चे के मुंह में फीडर दे दिया और वो खामोशी से दूध पीने लगा। इतने में मेरी बेटी उठ खड़ी हुई, कहने लगी, मामा, मुझे पेशाब की हाजत है। मैंने कमरे के साथ मुल्क बाथरूम की तरफ इशारा किया और कहा, जाओ बेटा, मैं जाग रही हूं। बेटी उठी और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद अचानक बाथरूम से बेटी की जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी। चीख की आवाज सुनकर मेरा खामद भी हड़बड़ाकर उठ बैठा और मैं भी एकदम परेशान होकर बाथरूम की तरफ दौड़ी। मैंने देखा कि मेरी बेटी बाथरूम की दीवार के साथ बैठी हुई थी और खौफ से उसका रंग जर्द पड़ गया था। अम्मी अम्मी, यहां बाथरूम में कोई था। और फिर वो रोने लगी। मैंने फौरन उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। क्या हुआ बेटा, कौन था यहां? अम्मी, बाथरूम में कोई था, इंतहाई भयानक काले रंग की कोई चीज थी, वो रोते रोते खौफ से बताने लगी। मेरा खामद भी बेचारा बहुत परेशान था। हम दोनों अपनी बेटी को तसल्लियां देते हुए बाहर कमरे में ले आए। बिस्तर पर बिठाया। वो बेचारी काफी सहम गई थी। मेरे मियाँ कहने लगे, ये डर गई है, शायद रात के वक्त उठी है तो इसीलिए। अब मैं खामद को क्या बताती कि मैंने कुछ देर पहले दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी थी। हम दोनों अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान हो गए थे। खैर, मैंने उसे तसल्ली दी और अपने पास लिटा लिया। उसे पेशाब कराने दोबारा खुद अपने साथ लेकर गई। उसके साथ ही बिस्तर पर लेट गई और बड़ी मुश्किल से उसे मैंने सुलाया। मेरे खामद भी काफी देर तक जागते रहे थे। मेरा जहन सख्त परेशान था और मैं सोच रही थी कि बाकी जो वक्त रह गया है वो गुजारने के बजाय सुबह यहां से चले जाएं। सुबह नाश्ते के बाद मैंने अपने खामद से कहा कि सैर सपाटा बहुत हो गया, अब हमें वापस चलना चाहिए। मगर मेरे मियाँ हंस पड़े और कहने लगे, तुम भी बच्ची के साथ बच्ची बन गई हो। अरे भाई, हम जितने दिन के लिए आए हैं
अपना प्रोग्राम पूरा करके जाएंगे। मैंने खामद को समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं माने। वो कहने लगे तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं था, रात के वक्त उठने की वजह से बच्ची डर गई थी। अगला सारा दिन भी बेदिली से घूमते हुए गुजर गया। मरी में दूर दूर बहुत से ऐसे इलाके हैं जो सैर सपाटे और तफरीगाहों के तौर पर मशहूर हैं। हमने तकरीबन हर जगह ही घूम डाली। अभी हमारी 2 रातें बाकी थीं और मेरा दिल चाहता था कि किसी तरीके से मैं खामिद को मनाकर घर ले चलूं, मगर मेरे मियां मानने पर तैयार नहीं थे। कहने लगे काम से कभी कभी मौका मिलता है बाहर निकलने का, अब आए हैं तो दिन पूरे करके ही जाएंगे। उस रात फिर खौफ से मुझे नींद नहीं आ रही थी। बच्चे बेचारे तो दोनों बच्चे थे, वो सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं सोच रही थी कि रात सारी जागकर गुजार दूंगी और दिन के किसी वक्त अपनी नींद पूरी कर लूंगी। मगर वैसी ही सूरत हाल फिर मेरी मुंतजिर थी। कोई 1:30 बजे का वक्त होगा कि दोबारा कमरे के दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। मैं कंबल ओढ़े लेटी हुई थी कि दस्तक की आवाज़ ने मेरे अंदर एक खौफ की सर्द लहर दौड़ा दी। खौफ की वजह से मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और दस्तक थोड़े थोड़े वक्फे के साथ बराबर हो रही थी। और फिर मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अनजानी ताकत ने मुझे बिस्तर से उठा दिया हो। मैं धीमे धीमे कदम उठाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो अपने सामने एक भयानक शक्ल को देखकर एक लम्हे के लिए मेरा दिमाग भग से उड़ गया। वो बड़ी खौफनाक सूरत चुड़ैल थी। मेरी जुबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसकी शक्ल इतनी खौफनाक, डरावनी और दहशतनाक थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा पूरा जिस्म पत्थर का हो गया हो। उस चुड़ैल के मुंह से बड़ी खरखराती हुई आवाज़ निकली, इस कमरे को खाली कर दो, यहाँ पर हमारा बसेरा है, हम यहाँ किसी को बर्दाश्त नहीं करते। उसके मुंह से इंतहाई भयानक और मकरू आवाज़ सुनकर मेरा दिमाग जैसे सुन हो गया था। अगर कल रात तक तुम लोग यहाँ पर हुए तो फिर कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। इतना कहकर मेरे देखते ही देखते वो भयानक शक्ल औरत मेरे सामने से जैसे गायब हो गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कदमों को किसी ने आज़ाद कर दिया हो। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ दरवाजे को बंद किया। दरवाज़ा बंद करने से ऐसा धमाका हुआ कि मेरा खामिद भी हड़बड़ाकर उठ बैठा। बच्चे भी बेचारे कसमसाए। क्या हुआ, पागल तो नहीं हो गई? बाहर क्या करने गई थी? मेरे खामिद ने कहा। मेरी तो खौफ से घिघी बंधी हुई थी। मेरे खामिद ने जल्दी से उठकर लाइट जलाई और मेरी हालत देखकर फौरन उठकर मुझे पकड़ा। क्या बात है? वो मुझे संभालते हुए बेड की तरफ लाया। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरा खामिद भाग कर गया, दरवाज़ा खोला और गैलरी में झांक कर देखा और दरवाज़ा बंद करके मुड़ा। बाहर तो कोई नहीं है। मैं जैसे गुमसुम हो गई थी। मैं सकते किसी कैफियत में थी और मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरा खामिद बेचारा बहुत परेशान था और मुझे होशो हवास में लाने की कोशिश करता रहा। उसने ग्लास में पानी डालकर मुझे दिया। मैंने जैसे तैसे पानी पिया और उसने मुझे लिटा दिया और ऊपर कंबल उड़ा दिया। वो समझ रहे थे कि शायद मैं डर गई हूँ। सारी रात मेरे खामिद ने मेरे साथ जाकर गुजार दी। सुबह होते ही मैंने खामिद से एक बार फिर इल्तिजा की कि वापस घर चले। मेरे खामिद ने जब मेरी हालत देखी तो उन्होंने फौरन काउंटर पर राब्ता किया, होटल के मैनेजर से हिसाब बेबाक किया और फिर सामान गाड़ी में रखवाया। अभी हमारा 1 दिन का कयाम बाकी था। होटल का मैनेजर परेशान था। कहने लगा, जनाब हमसे कोई गलती हो गई है जो आप होटल छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, हम दोबारा फिर कभी आएंगे। मेरे खामिद ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मैनेजर को जवाब दिया। मैनेजर कहने लगा, जी ज़रूर, हम आप लोगों का इंतज़ार करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारे होटल में दोबारा क़याम करके हमारी इज़्ज़त अफजाई करेंगे और आपने यहाँ पर जितना वक्त गुजारा अच्छा गुजारा होगा। मुझे उस मैनेजर की आंखों में अजीब सी चमक महसूस हुई। फिर हम गाड़ी में सवार हुए और वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। सारा रास्ता खामोशी में कटा। घर पहुंचे तो मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था। मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने इसे मौसमी बुखार का नाम दिया और दवाएं तजवीज़ की। बुखार तो उतर गया मगर मेरी जहनी हालत ख़राब थी। किसी के कहने पर मेरे खामिद ने किसी आमिल को घर बुलवाया। आमिल साहब ने बगौर मुझे देखा और कहने लगे, मियाँ तुम गए कहाँ थे? मेरे खामिद ने सारा माजरा बताया कि इस तरह हम पहाड़ी इलाके में एक होटल में हमने क़याम किया था, वहीं पर मेरी बीवी की ऐसी हालत हुई थी। फिर आमिल साहब ने चंद सवालात मुझसे किए जिनके मैंने मुख्तसर जवाबात दिए। मैंने आमिल को उस चुड़ैल के बारे में भी बता दिया कि मैंने वहां पर एक भयानक शक्ल की औरत को देखा था जो हमें होटल छोड़ने का कह रही थी। आमिल काफ़ी देर सर खपाता रहा और फिर कहने लगा, मियाँ जिस होटल में तुमने क़याम किया है वहां पर यकीनन कोई बात ऐसी हुई है जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी की ऐसी हालत हुई है। बाकी मैं इस पर मजीद कुछ काम करके ही बता सकता हूँ।
आमिल बेचारा तो चला गया, मगर मेरी हालत ना संभल सकी। दोबारा फिर मेरे शौहर उसी आमिल को बुलवा लाए। वो मेरे शौहर से कहने लगा, मियाँ एक बार हमें उस होटल में जाना होगा, वहां पर जाकर ही हकीकत हाल मालूम करनी होगी कि दरअसल तुम्हारी बीवी को हुआ क्या है। उसी रोज मेरे शौहर और वो आमिल दोबारा मरी चले गए। वापस आए तो आमिल ने कुछ दम पड़कर मुझ पर फूंका और फिर कुछ तावीज दिए। कुछ गले में बांधने के लिए थे और कुछ पिलाने के लिए। मुझे कुछ बात मालूम नहीं थी कि आखिर हो क्या रहा है। आमिल साहब ने मेरे मियाँ को तसल्ली दी कि तुम्हारी बीवी की हालत चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। मैंने अपने शौहर से पूछा कि आप होटल में गए थे तो वहां पर क्या बात सामने आई। मेरे शौहर बताने लगे कि जब हमने होटल के मैनेजर से जब ये बात कही तो पहले तो उसने यकीन नहीं किया, मगर जब मैंने उसको धमकाया कि तुम्हारे होटल में हमारे साथ ये वाकया पेश आया है तो उसने डरते डरते सारी बात बता दी। लेकिन एक वादा उसने लिया कि हम उसके खिलाफ कोई किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। उसने बताया कि जिस कमरे में आप लोगों को हमने ठहराया था वो कमरा हमने सालों से बंद कर रखा था। उस पर जो भी ठहरता था उसके साथ बहुत अजीबोगरीब वाकयात पेश आते थे, इसलिए हमने उस कमरे को बंद कर दिया था। काफ़ी अरसा बंद रहने के बाद अब हमने सोचा कि दोबारा उस कमरे को खोला जाए। हो सकता है कि अब ऐसे दोबारा वाकयात पेश ना आए, और पहली बार हमने वो कमरा खोलने के बाद आपको ही दिया था। दरअसल हुआ यूं था कि आज से कोई 15 साल पहले उस कमरे में एक लड़का लड़की आकर ठहरे थे। वो दरअसल आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। बाद में पता चला कि लड़का लड़की को उसके घर से भगा कर लाया था और उसे शादी का झांसा दे रखा था, क्योंकि उनके घर वाले शादी पर तैयार नहीं थे। मगर यहां लाकर उसने लड़की के साथ अयाशी करने के बाद वो सुबह होने से पहले पहले लड़की को कमरे में ही छोड़कर रफू चक्कर हो गया। लड़की ने सुबह सोचा शायद किसी काम से गया हो, लेकिन जब शाम तक वो वापस ना आया तो वो बेचारी परेशान होकर रोने लगी। होटल के मैनेजर को सारी बात बताई गई। उसने उस आदमी से राब्ता करने की कोशिश की, मगर उसके आइडेंटिटी कार्ड के अलावा जो नंबर दिया गया था वो मोबाइल नंबर मुसलसल बंद जा रहा था, इसलिए उस लड़के से राब्ता नहीं हो सका। मैनेजर ने बताया कि हमने इंसानी हमदर्दी के तहत उस लड़की को उस कमरे में तब तक रहने की इजाजत दी जब तक कोई उसके घर से आकर उसे लेना जाए। इस सिलसिले में हमने पुलिस स्टेशन में भी इतला कर दी थी और पुलिस इस मामले को हैंडल कर रही थी, मगर उससे अगले रोज ही सुबह हमें यह पता चला कि लड़की के कमरे का दरवाजा नहीं खुला था। जब दोपहर गुजर गई और शाम होने को आई तो होटल का अमला परेशान हुआ। हमने दरवाजा खटखटाया, मगर दरवाजा अंदर से बंद था और दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब भी नहीं आ रहा था। मायूस होकर हमने वो दरवाजा तोड़ दिया। जब हमने अंदर देखा तो हम परेशान हो गए। जब हम कमरे में दाखिल हुए तो हमारे दिमाग भग से उड़ गए। लड़की ने अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस आई। पुलिस लाश अपनी तहवील में लेकर चली गई। तफ्तीश के सिलसिले में होटल की इंतजामिया को भी मुलविस किया गया। काफी दिनों तक तफ्तीश चलती रही, मगर कुछ भी पता न चल सका। फिर हमने दोबारा कस्टमर्स के लिए वो कमरा खोल दिया, मगर जब भी उस कमरे में कोई कस्टमर ठहरता तो वहां पर अजीबोगरीब वाकयात पेश आने लगते। वहां पर रहने वाले को इतना सताया जाता कि वो वहां से भाग खड़े होते। इससे हमारे होटल की बदनामी होने लगी थी। बिलाखिर हमने तंग आकर वो कमरा बंद कर दिया। हमने एक आमिल को बुलवाया और उस कमरे के बारे में सूरत हाल पता की। आमिल ने पता चलाया कि उस कमरे में उस लड़की की बदरू भटक रही थी, जो वहां पर आने वाले किसी को भी ठहरने नहीं देती थी। हो ना हो ये जो भयानक शक्ल वाली चुड़ैल आपकी बीवी को दिखाई दी है, ये उसी लड़के की बदरू है। बेहतर होगा कि आप इस कमरे को हमेशा के लिए बंद ही रहने दें। यहां पर किसी को भी ठहराना मौत के मुंह में भेजने के मुतरादिफ होगा। लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद हमने सोचा कि शायद अब उस कमरे से आसेब हट गया हो। हैरत की बात है कि होटल के किसी दूसरे कमरे में कभी कोई हादसा रूनुमा नहीं हुआ, और हमने वो कमरा खोलने के बाद सबसे पहले आपको ही रहने के लिए दिया था। मैनेजर की बातें सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे धमकी दी कि मैं तुम्हारे होटल और तमाम इंतजामिया पर केस कर दूंगा, और फिर वो लगा मुझसे माफिया मांगने। पाँव में गिर पड़ा और कहने लगा हमें माफ कर दें। अब तुम बोलो क्या कहती हो। मैंने कहा छोड़ें, दफा करें, हमें उन पर केस करने की क्या जरूरत है। खुदा का शुक्र है कि हमारी जान बच गई। उसके बाद हमें दोबारा कई बार मरी जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन हमने उस होटल में कभी रिहाइश नहीं रखी। अभी चंद साल पहले हमें मालूम पड़ा कि उस होटल की इमारत को गिराकर वहां पर नई बिल्डिंग तामीर कर दी गई, लेकिन नई बिल्डिंग तामीर करने में उन लोगों को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। कई बार मजदूरों बेचारों को दौरे पड़े, और कई बार तो ऐसा हुआ कि कई काम बना बनाया फिर खराब हो गया। बहरहाल बड़ी मुश्किलों से वहां पर होटल की बिल्डिंग दोबारा तामीर हो गई। मैं अब भी सोचती हूँ कि ना जाने उस बदरू का क्या हुआ होगा।
क्या अब भी वो लोगों को वहां सताती होगी या उसने उस जगह का पीछा छोड़ दिया होगा, खुदा जाने।